you are not feeling good, you are not feeling well, you can say, ma'am, today I'm not feeling good. I have quite cold today, or I have a little bit fever. I'm a little tense today. You can share. You don't need to hide. Yes, ma'am. No, you can share. Like it seems like Bhumika, she's not. I'm getting She's not a feeling fever, well, right? cold and cough since 3 days. Yeah, yeah. It seems I can see that you have cold and cough. What about you, Pooja? Are you No, all I right? had, yeah, I'm all right, but yesterday I had some family emergency. That's Ha, ha, ha. why I did not attend the class. Yeah, That's it's okay. No problem at all, Pooja. You daily attend my class. It's okay, no problem at all. Okay, Akhil is also here. So, guys, those friends who are remaining for presentation, they will give presentation. But before that, I would like to start a new topic for the grammar, right? So before that, let's practice for some minutes, है ना? मैं एक sentence दूंगी और आपको translation करना है. चलिए. So, बोलना है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है. मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा. आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है. I'm feeling unwell. I'm not. Today I am not feeling good. Yes, हाँ ये भी बोल सकते हैं. I'm not feeling good today. I'm sick. थोड़े से बीमार हो तो I'm sick today. आप ये बोल सकते हो I'm sick today. Okay, चलिए. अब मुझे पूछना है क्या कल पूजा क्लास में प्रेजेंट थी? क्या कल पूजा क्लास में प्रेजेंट थी? क्या कल पूजा क्लास में प्रेजेंट थी? था, थी, क्या प्रेजेंट थी? टू बी वर्ब जस्ट नहीं लग रहा? Is Pooja present yesterday? Very good, Subhashish. Very good, Subhashish. Was Pooja present yesterday? अब आपको बोलना है नहीं, पूजा कल absent थी. Pooja was absent yesterday. Yeah. Very good. Pooja was absent yesterday. Okay. Very nice. Very nice. Okay. अच्छा, क्या आप regularly class attend करते हो? करते हो. क्या आप regularly class attend करते हो? Attend class. Very nice. Do you attend class regularly? Very good. Very Class good. regularly. Do you attend class regularly? Okay. अब आपको बोलना है कि मैं रोज क्लास अटेंड करता हूँ. I attend class daily. I am daily I attend attend my the class I regularly. attend the class daily. I attend कि I am attend? क्या सही है? I attend कि I am attend? I attend. I attend I class daily. Very good. I attend class daily. कैसे बोलेंगे? आजकल मैं न्यू लैंग्वेज सीख रहा हूँ. Nowadays, I am learning new language. Very nice. I am learning a new language nowadays. अच्छा, आप क्या सीख रहे हैं आजकल? आप क्या सीख रहे हैं आजकल? What are you learning now? Very nice. What are you learning nowadays? Very good. चलिए, अच्छा, ये तो क्लियर है ना? ये थे प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस. अच्छा, कैसे बोलेंगे? कल रात को 10 बजे मैं डिनर कर रहा था. कल रात को 10 बजे मैं डिनर कर रहा था. Yes. yesterday I was 10 o'clock. लंच या डिनर लेने को बोलते हैं टेकिंग. ing फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड. टेकिंग, ईटिंग. तो आप बोलोगे आई वाज टेकिंग डिनर एट 10 o'clock yesterday. I was taking dinner at 10 o'clock yesterday. Right? चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू ग्रामर लेसन, दैट इज परफेक्ट टेंस. क्या है आज का टॉपिक? परफेक्ट टेंस, है ना? तो आई होप कि आप सभी ने टेस्ट दे दिया है जो भी आज प्रेजेंट है क्लास में, है ना? और मैंने जब क्लास थोड़ा सा लेट हो गया, वैसे ही मैंने आपको टेस्ट देके रखा था. टेस्ट आप लोगों ने कर लिया होगा, आई होप, है ना? मैंने मार्क्स अभी देखे भी हैं कुछ बच्चों के. चलिए, लेट मी जस्ट शेयर दैट with you, है ना? Before that, I would like to open my own file where I can type something and teach you from that. Okay? So, अच्छा, जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है कि मैंने नाश्ता कर लिया है ना? अभी तो मैं क्लास ले रही हूँ.
बट अगर मुझसे कोई पूछेगा कुछ खाया आपने, कुछ खाया आपने, जैसे अपने कोई मेहमान आता है, कभी कोई मेहमान आता है तो पूछते हैं ना आपने कुछ लिया, आपने कुछ खाया, ऐसे बोलते हैं ना आपने कुछ लिया कि नहीं लिया, है ना। जब स्पेशली हम होस्ट होते हैं और मेहमान जा रहे होते हैं तो अपन पूछते हैं आपने खाना खाया, है ना, है ना। तो आपने खाना खा लिया, आपने खाना खाया, क्या बोलेंगे उसके लिए? मैम आपने कुछ खाया के लिए हैव यू टेकन समथिंग? वेरी गुड, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट अखिल, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस, है ना। तो ऐसा एक्शन जो अभी फिनिश हुआ है, जैसे मैंने अभी खाना खाया, मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया, सो ऐसे एक्शन की बात मैं करना चाह रही हूँ जो मैंने अभी किया। जैसे मैंने बोला आपने टेस्ट कर लिया, जैसे मैंने आपको टेस्ट दिया था ना अभी, मैं बोलूंगी आप लोगों ने टेस्ट कंप्लीट कर लिया, आपने पीडीएफ अच्छे से पढ़ा, सो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट टेंस। गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अखिल थोड़ी देर के लिए म्यूट करो अपने आप को, है ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है। यस परफेक्ट, नाउ गुड, है ना। अखिल के यहाँ से थोड़ा सा शोर आ रहा था, कल भी आ रहा था शायद अखिल, है ना। ध्यान दीजिए कि आपके आसपास सराउंडिंग में थोड़ा शांत वातावरण हो, इट शुड बी अ पीसफुल एरिया। व्हाई? it's when you know class is being recorded, it will be recorded as well, जो आपका शोर शराब आसपास का होता है वो भी रिकॉर्ड हो जाता है, तो बाकी जो बच्चे क्लास अटेंड करेंगे उनको दिक्कत होगी बाद में, है ना। ठीक है, परफेक्ट टेंस, पहली बात परफेक्ट का मतलब क्या होता है ना। जैसे मैंने बोला वाओ आज तो मैंने पिज्जा बनाया है, कैसे बनाया है पिज्जा, हाउ इज इट, कैसा बना है पिज्जा, हाउ इज इट, हाउ इज इट, पिज्जा यू नो बिल्कुल परफेक्ट बना है, बिल्कुल परफेक्ट, बाजार जैसा बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो परफेक्ट मीन समथिंग विदाउट एरर। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, विदाउट एरर, मतलब मैं उसमें नुस्ख नहीं निकाल सकती, मैं ये नहीं बोल सकती कि नमक कम है, नमक ज्यादा है, चीज कम है, चीज ज्यादा है, टॉपिंग अच्छी नहीं है, नहीं, ब्रेड भी अच्छा है, उसका यू नो बेस भी अच्छा है, सॉस भी अच्छा डाला है, बहुत परफेक्ट बना है, बिल्कुल बढ़िया। तो परफेक्ट का मतलब होता है विदाउट एनी एरर, ठीक है, पहला। बट परफेक्ट का एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है कंप्लीट, जिसका मतलब होता है कंप्लीट, मतलब पूरा, पूर्ण, सब हिंदी में बोलते हैं पूर्ण, कंप्लीट। सो परफेक्ट प्लस टेंस, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट एंड टेंस मतलब होता है काल, काल मतलब होता है वर्ब, वर्ब मतलब होता है एक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है एक्शन, क्या कंप्लीट हो रहा है, कोई एक्शन कंप्लीट हो रहा है, जहां पर एक्शन के जस्ट कंप्लीट होने की बात होती है वहां पर हम परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ये पहला पॉइंट है। अच्छा, फिर जब मैंने आपको वर्ब बेसिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि गाइस किस तरह से आप वर्ब को देखकर उस टेंस को बता सकते हो, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ टेंस from verb? Yes, we can identify. जैसे मैंने लिखा वर्ब की ing फॉर्म, वर्ब की ing फॉर्म कहाँ यूज होती है, कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, अगर सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करना है तो हाँ, तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है विल या शैल के साथ में। फिर मैंने आपको बताया था अगर कहीं भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, दैट मीन्स वो कौन सा टेंस है, दैट इज अ परफेक्ट टेंस। एम आई राइट और नॉट, परफेक्ट टेंस। जैसे एक वर्ड देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट, एक्सक्यूज मी, चलिए, जैसे सी का सेकंड फॉर्म क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं क्या, यू नो माइक ओपन करके, सॉ, है ना, वेरी नाइस। थर्ड फॉर्म क्या होगा, Seen. वेरी नाइस, सीन, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब एक और मैं वर्ड देती हूँ, उसका मुझे थर्ड फॉर्म बताइएगा आप, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या होगा, Brought. ब्रॉट, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, Brought. वेरी गुड, दैट इज ब्रॉट एज वेल, वेरी गुड। तो है ना, पता नहीं ये गलत क्यों बता रहा है, एक मिनट,
Yes, ma'am. GHT, हाँ बट ऊपर नहीं बता रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स द मैटर, Ma'am, both. बट ये सही है, बट दिस इज करेक्ट है ना। तो brought is third form, Ma'am, seen just is step third on form। word. क्लिक करके देखते हैं, बट मुझे तो पता है ना सही है, ठीक है चलो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब देखो कभी भी कोई स्ट्रक्चर होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, ये होता है ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, am I right or not? तो चलिए यहाँ पर मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेती हूँ, V3 परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पर यहाँ पर मुझे एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, किसकी जरूरत है, एक हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो यहाँ पर मैं हेल्पिंग वर्ब पता है क्या लूंगी, हैव या हैज, क्या लूंगी मैं, हैव या हैज हेल्पिंग वर्ब के रूप में लूंगी। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर। अब देखिए, अब एक और बात, अखिल आप अपने आप को म्यूट करिए बेटा, आप ना आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है ना। अखिल को स्पेशली मैं बोल रही हूँ, अखिल आर यू हियर इन द क्लास, है ना। नो मैम, अखिल कहीं से आवाज नहीं आ रहा है, आपके यहाँ से आ रहा है। नहीं मेरे यहाँ से नहीं आ रहा, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम माय साइड। बदल मैंने आपको नहीं बता रखा था। अच्छा, ठीक है जहाँ आपको लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके सराउंडिंग में नॉइजी है, तो क्योंकि मैं तो जहाँ बैठी हूँ ना वहां पर बिल्कुल रूम पैक्ड है, देयर इज नो साउंड एक्सेप्ट माय साउंड, राइट, बिल्कुल रूम पैक्ड है ना, कोई आवाज नहीं आ रही है, ठीक है ओके। सो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चलिए ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, बट एक्चुअल में जब हम स्पोकन की बात करते हैं तो हम परफेक्ट टेंस कहाँ यूज करते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला, मैडम मैंने अभी टेस्ट दिया, आपने मुझसे कहा था ना मैडम टेस्ट देने के लिए, है ना, तो मैडम मैंने टेस्ट कर दिया है ना, मैंने ये काम कर लिया है, तो मैंने ये काम कर लिया है, मैं ये काम कर चुका हूं। सो जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ये आ जाए, कर लिया है, कर चुका हूं, खा चुका हूं, टेस्ट दे चुका हूं, कॉलेज पहुंच चुका हूं, कॉलेज पहुंच गया हूं, तो चुका है चुकी है आ जाए लास्ट में, या कर लिया है ना, इस तरह से आ जाएगा सेंटेंस, तो परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मैम मैंने टेस्ट दे दिया है, टेस्ट देने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कौन सा वर्ब यूज करते हैं, टेक, मैंने आपको समझाया था ना, टेक यूज करते हैं। तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन। वेरी गुड। तो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट लिखा आई के साथ क्या लगता है, हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। आई हैव टेकन टेस्ट, यस मैडम आई हैव टेकन टेस्ट, मैंने टेस्ट दे दिया है, मैं टेस्ट दे चुका हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए पूजा बोलेगी, मुझे बोलना है पूजा ने टेस्ट दे दिया है, पूजा टेस्ट दे चुकी है, तो कैसे बोलेंगे, पूजा हैव आएगा, वेरी गुड, पूजा के साथ हैज आएगा, वेरी नाइस, पूजा हैज टेकन टेस्ट, पूजा हैज टेकन टेस्ट, पूजा ने टेस्ट दे दिया है, पूजा टेस्ट दे चुकी है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, मैंने न्यू मूवी देख ली है, मैंने सूर्यवंशम मूवी देख ली है, मान लीजिए बोलना है मैंने सूर्यवंशम मूवी देख ली है, या मैं देख चुकी। I have seen. हाँ वॉच्ड भी आ सकता है, सीन भी आ सकता है, वेरी गुड, सूर्यवंशम मूवी है ना, आई हैव वॉच्ड सूर्यवंशम मूवी। देखो सूर्यवंशम पर उसने रेड नहीं बताया, देखो कंप्यूटर में, बल्कि सूर्यवंशम इज नॉट एन इंग्लिश, नॉट ए इंग्लिश वर्ड है ना, देखा सूर्यवंशम पर उसको इंग्लिश में, हाँ These movies always come on Set Max, that's why.
मे बी, बट देखो ब्रॉड को उसने रेड लाइन बताया है, बट देखो ये ऊपर ब्रॉड है उसको नहीं लगाया, इसको ब्रॉड को लगाया। सूर्यवंशम को रेड नहीं बताया, जबकि वो हिंदी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है। बताओ। चलो, आई हैव वॉच मतलब अब वो सुपर डुपर स्टार्स है ना, हिट स्टार्स है शायद इसलिए। चलो चलो, कैसे बोलेंगे? मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है। बनाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रिपेयर। प्रिपेयर भी बोल सकते हैं और मेक भी बोल सकते हैं। मेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? मेड। हाँ, तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है। I have made a new project. Very nice. I have made या prepared भी बोल सकते हैं। Made a new project. Okay. Now कैसे बोलना है? मैम मैंने होम टाउन पर प्रेजेंटेशन दे दिया है। मैंने दे दिया है, मैं तो फ्री हूं अब। मैंने होम टाउन टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दे दिया है, या मैं दे चुका हूं, या मैं दे चुकी हूँ। I have taken given presentation. I have given the presentation on my hometown. on Topic है my home. है ना, टॉपिक है my hometown. ठीक है, I have given presentation on my hometown. Very nice, very good. है ना। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर has और have है ना, आपने देखा ना has have आ रहा है। अगर मैं इसको पास्ट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है गाइस। कर चुका हूं, कर चुकी हूं, कर लिया है लास्ट में आता है। अब इसको पास्ट परफेक्ट बनाना है। पास्ट परफेक्ट बनाना है तो पता है कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हैज और हैव है। कैन यू सी हैज एंड हैव वर्ब हियर? है ना। तो हैज और हैव को क्या करना है? हटा के हम क्या यूज कर सकते हैं? हैड। वेरी नाइस। तो यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे? हैज हैव की जगह हैड यूज कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हैड। तो अगर हमने यहाँ पर हैड लिख दिया तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। दैट विल बी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहला हमारा कौन सा था? प्रेजेंट। प्रेजेंट क्यों था? पहली बात तो परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बट प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, अब अगर परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, पर अगर हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया, मैंने हैड यूज कर लिया, और हैड हैज और हैव का पास्ट होता है, तो दैट विल बी पास्ट परफेक्ट। इसका सेंटेंस एक बनाते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि मैं कल, यस्टरडे, कल की बात कर रही हूँ, मैडम मैं कल प्रेजेंटेशन दे चुका था। मैं तो दे चुका था, मैं नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव। मैं कल प्रेजेंटेशन दे चुका था, तो कैसे बोलेंगे? मैं कल प्रेजेंटेशन दे चुका था। I had given presentation yesterday है ना। I had given presentation yesterday। पता है गाइस, बहुत इजी है ग्रामर। आपको क्या करना है? देखो, पहली बात तो जब हम ग्रामर सीखते हैं या कोई भी सेंटेंसेस सीखते हैं नए नए तरह के, तो स्पेशली जो ग्रामर हम चैप्टर्स लेसन्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड आता है उसको समझ के हमें जल्दी से कन्वर्ट करना है। जैसे ये वाला तो समझ में आ गया, आई हैड गिवन प्रेजेंटेशन यस्टरडे। ठीक है, हाँ, कल मैं प्रोजेक्ट सबमिट कर चुका था। कल मैडम, कल मैं प्रोजेक्ट सबमिट कर चुका था। I had submitted presentation yesterday. I had submitted project yesterday. Very good, है ना। अब देखो, इस वाले गलत है। अब देखो, मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ ना, मैं आपको एक अच्छी सी चीज बताती हूँ। मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, उसमें एक वर्ब चूज कर रही हूँ और मैं एक सब्जेक्ट चूज कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा आई कुक, है ना, आई कुक।
चलो कुक भी छोड़ दो, मैं एक वर्ब यूज कर रही हूँ, कुक। कुक क्या होता है? वर्ब होता है, ठीक है। कुक वर्ब है, उसका सेकंड फॉर्म होता है कुक्ड, थर्ड फॉर्म भी होता है कुक्ड, आपको पता होगा। और आइन, अरे बाप रे, अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं 2 फॉर्म एक साथ लिख रही हूँ ना, सेम आ रहा है, इसलिए वो राइट बता रहा है। छोड़िए, लीव इट। कैसे बोलेंगे? लीव इट, लेट इट बी, रहने दीजिए। रहने दीजिए को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? लेट इट बी। क्या बोलेंगे? लेट इट बी। और लीव इट, जान तो दो, छोड़ो दो, लीव इट, लीव इट और लेट इट बी, है ना। देखिए, सो जैसे मुझे बोलना है मैं एक कुक हूं, जो खाना बनाते हैं ना, मुझे बोलना है मैं एक कुक हूं, तो क्या बोलूंगी मैं? I am a cook. वेरी गुड, आई एम अ कुक। मैं एक कुक हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। चलो, अब और इससे बहुत सारे मैं 10 सेंटेंस बना रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि एक्चुअली तरीका ये है। मैं एक कुक थी, I had a cook. ध्यान से सुनिए, मैं एक कुक थी। I was a cook. हाँ, आई वॉज अ कुक होगा ना रेशमा, ठीक है। Okay. मेरे पास एक कुक है, मतलब मैं खाना नहीं बनाती, मुझे नहीं बनाना आता, मेरे घर में एक कुक है, मेरे पास एक कुक है। अब I have a आई हैव अ कुक, वेरी नाइस, अब सही बोला आपने, आई हैव अ कुक। अच्छा, मेरे पास एक कुक था, मतलब लॉकडाउन के बाद कुक वुक सब चला गया, खुद ही कुछ करना पड़ता है, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। I had a cook. सुबह झाड़ू वाला, बर्तन वाला, सब कुछ अपन बन गए ना, लॉकडाउन में सब कुछ सीख लिया। बर्तन मारने वाले बन जाओ, झाड़ू पोछा लगाने वाले, है ना, कोरोना के टाइम सब कुछ बनना पड़ता था, मल्टीटास्किंग हो गए थे, है ना। ठीक है, आई एम अ कुक, मैं एक कुक हूँ, मैं कुक थी, आई वाज अ कुक, मैं कुक बनूंगी तो आई विल बी अ कुक बोल सकते हैं। आई हैव अ कुक, आई हैड अ कुक, ठीक है। चलो, अब ध्यान से सुनना, मैं डेली डिनर कुक करती हूँ। सुनिएगा सेंटेंस, लास्ट में क्या आ रहा है? मैं डेली डिनर कुक करती हूँ। सेंटेंस का लास्ट वाला पकड़ो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या होगा? आई कुक डेली, आई कुक डिनर I डेली, dinner daily. डेली। ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे बोलना है कल रात को मैंने डिनर कुक किया था। पास्ट टेंस, Yesterday, आई कुक्ड, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, I- आई कुक्ड डिनर यस्टरडे, yesterday. है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब बोलना है मैम एक्चुअली यस, आप लोगों ने डिनर बना लिया अपने घर में? सबने बना लिया? हाँ, मैंने तो डिनर बना लिया है, या मैं डिनर बना चुकी हूँ। मैंने डिनर बना लिया है, मैं डिनर बना चुकी हूँ। I I have have cooked dinner, यही पढ़ा रही हूँ ना मैं आपको आज। मेरा बताने का मतलब है कि एक सेंटेंस उठा लो और एक वर्ब उठा लो, उसके जितने भी आप टेंस बना सकते हो, ग्रामर वाले, वो बनाओ। जैसे आई हैव कुक्ड, मैंने डिनर बना लिया है, मैं डिनर बना चुकी हूँ। कंटिन्यूअस टेंस हम भूल गए, कैसे बोलेंगे? मैं डिनर बना रही हूँ, रहा है, रही हूँ। I am कुकिंग cooking. डिनर, वेरी नाइस, आई एम कुकिंग डिनर। मैं डिनर बना रही थी। I was cooking dinner. वेरी गुड, कितना इजी है। रोज रोज आप लोग पता है 10 सेंटेंस ऐसे बनाइए, कभी भी ना आपका कॉन्सेप्ट, मतलब आप कभी भी कुछ भूलोगे नहीं। टू बी वर्ब का एक सेंटेंस बनाओ, एक वर्ब लो, पिक वन वर्ब, लाइक मैंने यहाँ पर कुक लिया है, आई एम कुक, आई वॉज कुक, आई विल बी कुक, आई हैव अ कुक, आई हैड अ कुक, आई विल हैव अ कुक, आई कुक डेली, I cooked yesterday, I'm cooking dinner, I was cooking dinner, I will be cooking dinner. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या था? I will be cooking dinner, मैं कल डिनर बना रही होंगी, है ना। और I have cooked dinner, मैंने डिनर बना लिया है, मैं डिनर बना चुकी हूँ, जो कि मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ परफेक्ट टेंस। ये ना, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि आज मैं पढ़ा रही हूँ, बाकी चीजें हम पीछे की पढ़ चुके हैं।
और कैसे बोलेंगे मैं डिनर बना चुकी थी? I had cooked dinner. Am I right or not? Yes? Right. Okay. चलिए अब मान लीजिए जो सेंटेंस है I have cooked, इसको नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या यूज करूंगी? I had not. वेरी गुड. I have not cooked dinner. तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ता है तो हम क्या पुट करते हैं? not. राइट? तो I have not. have not को बोलते हैं haven't. क्या बोलते हैं guys? haven't. Come on, say haven't. Haven't or very good, or hasn't. I haven't cooked. I haven't cooked dinner. Yes guys, let me tell you that I haven't cooked dinner yet. अभी मेरा भी खाना नहीं बना है घर में, तो मैं क्लास फिनिश होने के बाद बनाऊंगी. So I haven't cooked my dinner yet. Okay. So what about you guys? You cook, or your parent, your mother, she cooks, or somebody helps you in cooking? Dinner, my dinner. My friends are cooking. Okay. What about Bhumika? Your mother cooks? My mother-in-law. Okay, your mother. How sweet. How sweet. She cooks. Mother. How sweet. Do you have kid? Do you have kid? Do you have Yes. kid? How many? My mother-in-law, father-in-law, and one kid. Okay. Wow. I have never seen like Pooja's. I can see Pooja's kid here. Sometimes he comes, she tries to get him away, let him away, but he comes. But it's okay, no problem. It happens, right? Okay, they are also quite interested. या मम्मा क्या कर रही है, मैं भी तो देखूं, मुझे भी कुछ होता है ना एक्साइटमेंट, है ना? बट भूमिका के साथ अच्छा है. भूमिका का मैंने कभी देखा ही नहीं, तो मुझे लगता था she has no kid. I thought. Okay. वो नानी के वहाँ रह रही है. अच्छा, okay, she's with granny. Yes. Okay. She can live without you? She can stay there? रह रही है. Okay. How old is she? 3 years. 3 years. 3 year old. My son can't stay without me. Okay. चलिए. Okay, Reshma, you tell me. Yes. Reshma, it's your turn. You tell me, have you cooked your dinner? Yes, ma'am. My friends are cooking. Oh, very nice. They are so nice. They are cooking for you. Very good. So you all cook together. Am I right or not? No, we have chance. No, 2 or 3 person. मतलब अलग-अलग दिन में You have. turn रहता है. Okay, it's not your turn today for dinner, right? Okay, you are free today. Okay. Madhulika, what about you? Do you cook or somebody else cook? Hello, Madhulika, are you here? I have cooked. Okay, very nice. So Madhulika ने तो बना लिया है खाना. पहले खाना बना लो, full class 10 करेंगे. So Madhulika has cooked. Reshma is not cooking because her friends are cooking, right? And Subhashish, his mother must be cooking, right? Am I right? Now Akhil's mother should be cooking, right? Okay. चलो, very nice. चलिए, तो अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ PDF, है ना? PDF शेयर करते हैं. वही जो PDF मैंने आपको दिया था, थोड़ा सा तो हमें आइडिया हो गया है, ये जो नया टेंसेस का आइडिया हो गया है. अब हम डायरेक्ट PDF में देखते हैं कि PDF में क्या लिखा हुआ है. उसको देखते हैं थोड़ा सा, है ना? 1 मिनट. इसको ना मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा. बहुत सारी फाइल्स अचानक ओपन हो जाती हैं, बाद में पता नहीं चलता है. बहुत सारी फाइल्स ऑलरेडी ओपन्ड हैं. चलिए, तो it will take few seconds, guys. Meanwhile, you tell me what kind of problem now are you facing? Do you face any problem, difficulty while speaking? No problem. No? Okay. No problem. Okay. So you try, like Reshma, she is living with her friends, right? Subhashish is also going to school, right? He's taking online class nowadays, है ना?
attending, right? So if you are surrounded by your friends, if you have many friends, you can talk to them. Like Reshma has perfect environment where she can talk to her friends, right? And Akhil, you also try to get some friends where you can talk, especially in English, not in Hindi or other language, right? Okay. You should do, guys. क्या होता है, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम हम कितने दिन में इंग्लिश सीख जाएंगे? तो परफेक्ट आंसर हम इसलिए नहीं दे सकते कि डिपेंड करता है, और इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 1 महीने में एकदम से परफेक्टली सीख लोगे ऐसा मतलब मैं गारंटी से तो नहीं बोल सकती, हाँ, बट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट काफी क्लियर आप अपने कर सकते हैं। बट वो जो स्पोकन होती है वो एक स्किल है, वो प्रैक्टिस से ही आती है गाइस, राइट? चलिए, सो कैन यू सी द स्क्रीन? इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके, तो देखिए यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना? अब हम रिवीजन जैसा कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ, एंड आई होप। तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? और अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो देखिए, आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको, हमने क्या यूज किया? हैड यूज किया है, ठीक है? अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो वहां पर विल हैव यूज करेंगे या शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया, आई हैव टॉट यू, मैं यही बोलूंगी ना, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और मैंने आपको अभी पढ़ाया, मैंने अभी आपको पढ़ाया ना परफेक्ट टेंस, तो मैंने वो एक्शन की बात कर रही हूँ जो अभी हुआ, मैंने आपको पढ़ा दिया, आई हैव टॉट यू, परफेक्ट टेंस। अब आप बोलोगे हाँ मैम मुझे समझ में आ गया, मैं समझ चुका हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव अंडरस्टूड। अंडरस्टूड क्यों यूज किया? क्योंकि अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? अंडरस्टूड। तो आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूं। जैसे मुझे बोलना है अखिल को समझ में आ गया है या अखिल समझ चुका है, तो कैसे बोलेंगे? अखिल हैज अंडरस्टूड। अखिल हैज अंडरस्टूड, वेरी नाइस। अखिल आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं, यू कैन ओपन योर माइक, है ना? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, कैसे बोलेंगे? मैं पहुंच गया हूँ, मैं पहुंच गया हूँ। अखिल कैसे बोलेंगे मैं पहुंच गया हूँ? आई हैव रीच्ड। आई हैव रीच्ड, वेरी नाइस, आई हैव रीच्ड। कैसे बोलेंगे? अंकल आ गए हैं, अंकल आ गए हैं, अंकल पहुंच गए हैं। Has came. Uncle has came. अच्छा, अब सबने बोला केम। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने वर्ब के फॉर्म्स अच्छे से याद करे हैं तो कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, केम नहीं होता गाइस। कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, थर्ड फॉर्म कम होता है। इसी तरह से बिकम, बिकेम, बिकम, कम, केम, कम। इसलिए यहाँ पर ही हैज कम लिखा हुआ, आप देख सकते हैं, वो आ चुका है, he has come, C-O-M-E is also third form of come। अच्छा, अगर मुझे बोलना है वो आ चुका था, तो क्या बोलेंगे? वो आ चुका था, He had come. he had come। वो आ चुका होगा, He will have. he will have come। चलिए, अब ना कुछ नहीं करना है, अब हम क्या करेंगे? यस, पूजा हैज रेज्ड हैंड। यस पूजा, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। मैम arrive यूज कर सकते हैं? Arrive? Please repeat. Can we use arrive word instead of? Yeah, sure. You can use arrived, use कर सकते हो आप। It's also correct. चलिए, अब कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा काम करना है हमको, बहुत ही सिंपल आसान है आपके लिए। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं, you can see some sentences here। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देख के वैसे का वैसा बोलना है। मैं हिंदी में बोलूंगी, आपको इंग्लिश में बोलना है, सुनिएगा ध्यान से, है ना? आपको देखना और बोलना है। जस्ट लेट योर स्पीच ऑर्गन स्पीक इन इंग्लिश। ओके, वह जा चुका है, जल्दी से। He has gone, ठीक है। अब मैं बोलूंगी वह जा चुकी है। She has gone. Very good, she has gone। कैसे बोलेंगे? मधुलिका जा चुकी है। Madhulika has gone. ठीक है, अब मुझे बोलना है रेशमा आ चुकी है। Reshma has come. रेशमा has come।
वेरी नाइस। अब मुझे बोलना है वह जा चुका था। He had He had Gone. go. Gone. 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 देखिए go का थर्ड फॉर्म क्या होता है? Gone. go का थर्ड फॉर्म क्या होता है? Gone. अब आपको पता चला वर्ब, जो मैंने आपको वर्ब्स दिए थे वो याद करने कितने जरूरी हैं। सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलो अब मुझे बोलना है वह जा चुकी थी। She had gone. She had had gone. Very nice. मुझे बोलना है राहुल जा चुका था। Rahul had gone. ठीक है। अब मुझे बोलना है राहुल एग्जाम दे चुका था। Rahul had Rahul had exam. राहुल had taken exam. Taken exam. टेक होगा Take. टेकन। राहुल हैड टेकन एग्जाम। ठीक है। मैं कल रात प्रोजेक्ट सबमिट कर चुकी थी। मैं कल रात submitted my project yesterday. I had submitted project yesterday night, कल रात। ठीक है, वेरी गुड। कैसे बोलेंगे वह जा चुका होगा? He will have gone. He will have gone. वह जा चुकी होगी? She will have gone. She will have gone. कैसे बोलेंगे सुभाशीष आ चुका होगा? Shubhashi will have come. Will have है ना, ये आ चुका होगा बोला ना मैंने। ठीक है। कैसे बोलेंगे मैं प्रेजेंटेशन, ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रेजेंटेशन दे चुकी होंगी। I will वेरी गुड। I will have given presentation. वेरी नाइस। कैसे बोलेंगे ट्रेन आ गई है? देखो देखो ट्रेन आ गई है, ट्रेन आ चुकी है। The train has arrived. बस आ गई है, बस आ चुकी है। The bus has The bus has arrived. कैसे बोलेंगे मामा जी आ गए हैं या मामा जी आ चुके हैं? has arrived और reached भी बोल सकते हैं। हाँ, उसने नहा लिया है, उसने नहा लिया है। He has taken a bath. He has taken a bath. अच्छा, वह नहा चुका है? He has taken a bath. ठीक है। मैंने नहा लिया है या मैं नहा चुकी हूँ? I have taken a bath. Very good. I have taken a bath. Very nice. वह सो चुका है? He has slept. वह सो चुका है, सो चुका है, बॉय है। He has slept. He has slept. He has slept. कैसे बोलेंगे बेबी सो चुका है या बेबी सो गया है? Baby has slept. Very good. Baby has slept. अच्छा, मनोज अभी आया है। अभी मतलब जस्ट। मनोज अभी आया है। has just come या has just arrived. कैसे बोलेंगे मैंने बस अभी क्लास स्टार्ट की है? मैंने बस अभी मतलब जस्ट। मैंने बस अभी क्लास स्टार्ट की है। I have just started class. Very good, very nice. I have just started class. Very good, very good, very good. कैसे बोलेंगे 7 बज चुके हैं? ऐसे कई बार बोलते हैं ना, कितने बज गए? 8 बज गए, 7 बज गए, 7 बज चुके हैं। कैसे बोलेंगे 7 बज चुके हैं अभी? It has just